Hello dear learners, hope you are doing well. So here comes the part 2 of 2023 February paper. Yes, part 1 is already uploaded and you can check it on channel. Also I have pinned in the description the playlist, so you can watch the video there also. And yes, do check other videos and try to at least give it once a view, okay? Because there are few questions which do repeat, or else the options, because in these videos I am not just giving the information related to the question but also to the answers. So try to check the video and do subscribe the channel if you are new. Okay, so now without wasting much time, let's get started with the very first question, that is the 51st question of today's video. Here, so 51st question: with reference to the early life of Sher Shah, which of the following statements are correct? It is regarding the early life of Sher Shah Suri. Okay, so our correct statement is option 2, A, B, C. His grandfather was a petty horse trader who came from Afghanistan. His father Hassan emerged as a leader of Afghan freebooters. Hassan was placed in charge of the Pargana of Narnaul. Okay, these three are correct. And उसके बाद के जो दो है D and E are wrong. Farid joined the services of Taj Khan, the commander of Bengal. He submitted a petition to Taj Khan to dismiss his father Hassan from the service. So the Farid joined the service of Taj Khan. ये वाला statement भी wrong है, because Farid यहाँ कौन है? शेर शाह. शेर शाह's original name was Farid. He joined the service of Jamal Khan. किसकी सर्विस ज्वाइन करते हैं वो? जमाल खान. ओके, एंड ही सबमिटेड अ पिटिशन टू ताज खान. ये भी क्वेश्चन गलत है. उन्होंने पिटिशन जमाल खान को ही सर्व की थी टू डिसमिस हिज फादर हसन खान सूरी. ओके, सो हियर इट इज जमाल खान. ओके, नॉट ताज खान. एंड यस, फरीद किसका नाम है? फरीद इज नेम ऑफ अवर SS शेर शाह सूरी SSS. ओके, शेर शाह सूरी का ही नाम है फरीद. So here is the correct answer. And yes, about Sher Shah Suri, the book on medieval India, in that book it is given. Okay, I will just show you the book. Let's see. In this book there is description about Sher Shah Suri. Hope it is visible. ठीक है, medieval India. These are the old NCERTs. I do have old NCERTs as well as the new one, and I do read both for the correct information. So Sher Shah Suri के father का नाम हसन है, and all this information is given in this book. Now next question. If you don't have, don't worry. अभी टाइम भी नहीं है कि आप बुक पढ़े, बट येस, अगर आप 2024 दिसंबर को टारगेट करें, सो यू हैव द टाइम, डू रीड द बुक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन 52. सो अवर करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 3, A, B, C and E. Skandagupta assumed the title of Karmaditya and Vikramaditya. Somdeva's Katha Charita Sagra mentions the defeat of Milad Shahs. In the 6th century, Gupta suzerainty was challenged by the Hunas, and the Afsad inscription discloses the name of a number of Gupta kings. Okay, so the 4 statements are right, but only D is wrong. Puru Gupta was succeeded by his son Kumar Gupta too. No, वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ओके, स्कंदगुप्ता अज्यूम द टाइटल ऑफ कर्मादित्य एंड विक्रमादित्य. ओके, ये टाइटल्स उन्होंने अज्यूम किए थे. हु वॉज स्कंदगुप्ता? ये 5th सेंचुरी में आते हैं, 455 से लेकर 467 AD. ओके, नोन फॉर हिज मिलिट्री विक्ट्रीज एंड आर्ट एंड साइंसेज. ओके, कथा सरिता सागरा बाय सोमदेवा. यहाँ पर सी देर इज बुक एंड ऑल्सो द ऑथर नेम. सोमदेवा की बुक का नाम क्या है? कथा सरिता सागरा. संस्कृत टेक्स्ट इन विच इट इज गिवन द डिफीट ऑफ मेलद शाहs हु वेर कंसिडर्ड टू बी बारबेरियंस. फॉरेनर्स थे, उनकी डिफीट बताई गई. हुनास. ओके, नाउ हुनास के बारे में सी 6th सेंचुरी गुप्ता सुजर्निटी वॉज चैलेंज बाय द हुनास. सो हुनास आते हैं 6th सेंचुरी में, एंड दे इन्वेडेड इंडिया इन 5th सेंचुरी एंड चैलेंज द गुप्ता सुजर्निटी. ओके, एंड दे वर इवेंचुअली डिफीटेड बाय स्कंदगुप्ता. उन्हें कौन हराते? स्कंदगुप्ता उन्हें हरा देते. देन कम्स द अवसाद इंस्क्रिप्शन. ओके, यस, वन मोर थिंग. यहाँ पर जो कुमार गुप्ता वाला जो है, पुरु गुप्ता वो सक्सीडेड बाय हिज सन कुमार गुप्ता 1. ये 1 है, नॉट 2. कुमार गुप्ता 1. ओके, एंड अवसाद इंस्क्रिप्शन इज एन एंशियंट इंडियन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मध्य प्रदेश. ओके, एंड इट हैज़ नेम्स ऑफ वेरियस गुप्ता किंग्स. समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमार गुप्ता, इन सबके नाम उस पर दिए गए. सो ई इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 53. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? जैन टीचर. ओके, पहले तो ऑप्शन 4 है करेक्ट. जैन टीचर महावीरा वॉज द सीनियर कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा. ओके, महावीर बुद्धा की कंटेम्प्रेरी है. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट. द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा वॉज प्रोपाउंडेड बाय महावीरा. ओके, जैनिज्म में अहिंसा का कंसेप्ट है, ये तो हमें पता है. देन डी, महावीरा वॉज बॉर्न इन बिहार नियर पाटलिपुत्र. अनेकवदा इज अ मेजर philosophical principle of Jainism. Okay, so our 4 statements are correct.
सिर्फ विनय पिटका इज अ टीचिंग टेक्स्ट टीचिंग द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, ये रॉन्ग है। विनय पिटका है क्या जिसमें बुद्धिज्म के बारे में फिलोसॉफी बताई गई है? नो, इट इज़ नॉट। विनय पिटका में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। सूत पिटका में दिया गया है टीचिंग्स। ओके, सूत पिटका में टीचिंग ऑफ फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म। बाकी जैन टीचर महावीरा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। ओके, महावीरा कब बॉर्न होते हैं? 599 BC एंड डेथ होती है 527 BC में। एंड बुद्धा कब बॉर्न होते हैं? 563 में। एंड डेथ कब होती है? 483 में। ओके, चलिए। एंड देन महावीरा और बुद्धा दोनों ने भी अहिंसा को प्रपाउंड किया है। ठीक है, पहले सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था? महावीरा ने। देन महावीरा अहिंसा प्रैक्टिस, फिर किसी को भी तकलीफ नहीं देना, जैसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, कोई भी नहीं, ये महावीरा ने बोला है। देन सी इज रॉन्ग, विनय पिटका में नहीं दिया है। वन मिनट, हाँ, अभिधम्म पिटका में दिया है, नॉट सूत पिटका। हाँ, लेट मी क्लियर। अभिधम्म पिटका में फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी दी गई है एंड सूत पिटका में डिस्कोर्स दिया है। समटाइम्स इट्स रियली कन्फ्यूजन। देन कम्स महावीरा वॉज बॉर्न इन बिहार, पाटलिपुत्र के पास में, बिहार में होता है ये। क्षत्रिय कुंड नाम की एक प्लेस है वहाँ पर। ओके, हिज फादर वॉज चीफ ऑफ जंत्रिका क्लैन। एंड लास्ट ई वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ई स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज द मेजर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म दैट रेफर्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ व्यू पॉइंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अभी ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रहेगा बिकॉज देर आर ऑलमोस्ट ऑल द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन ही रहेंगे। सो दिस विल बी अ बिगर पार्ट और लार्जर पार्ट। ऑप्शन 4 is correct, B, C, D and E. So Yodhas are mentioned in Panini's Ashtadhyayi. Coins attributed to Malwa tribe have been discovered in large number at Nagar. The Malwa coin bear legends. The Nagas were serpent worshipping tribes of ancient India. Okay, so our correct answer is option 4. सबसे पहले जो खोतन है was very important center of Buddhism. No, खोतन चाइना में एक प्लेस है एंड important center of Jainism. 1 minute. खोतन important center of Buddhism है, not Jainism. ओके, यहाँ पर बुद्धिज्म आएगा। एंड देन योद्यास आर मेंशन्ड इन पनिनीस अष्टाध्यायी। पनिनी की एक वेरी फेमस बुक है अष्टाध्यायी, एंड इन दैट देयर इज मेंशन ऑफ दिस हैपेंस एवरी टाइम। सो इन दिस देयर इज मेंशन ऑफ हु? योद्यास। ओके, अष्टाध्यायी संस्कृत टेक्स्ट है ग्रामर पे, ये आपको पता है। Oldest and most important work on grammar and linguistics in India. Then Malwa tribes have been discovered in large number at Nagar. Okay, फिर उनके जो coins है they bear legends which are inscriptions that provide information about the coin issuer, its denomination and other relevant details. उस पर ये सारी डिटेल्स है, कौन उसको बनाते हैं, मतलब कि किस किंग के अंडर वो बने हैं, their denomination and other relevant details. Then the Nagas were serpent worshipping tribes. Option E. ओके, ये बेसिकली कहाँ पर मिलते हैं? बिहार एंड उत्तर प्रदेश वाले रीजन में मिलते हैं। सो इनके बारे में मेंशन भी है काफ़ी सारे पुराणों में, महाभारत में। दिस आर द पीपल विद पावरफुल एंड मिस्टिकल पावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स बिलोंग टू वारकरी पंथ? वारकरी संप्रदाय से कौन कौन आते हैं? ज्ञानेश्वर, नामदेव, निम्बार्क, माधव, तुकाराम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, A, B and E. ज्ञानेश्वर, नामदेव एंड तुकाराम। सो ज्ञानेश्वर, नामदेव एंड तुकाराम, ये 3 आते हैं वारकरी संप्रदाय, वारकरी पंथ, विच इज प्रिवेलेंट इन महाराष्ट्र फ्रॉम 13th century. यस, अभी भी वारकरी संप्रदाय काफ़ी एक्टिव है महाराष्ट्र में, इट इज स्टिल प्रेजेंट। ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, इट इज़ अ कमेंट्री ऑन भगवद गीता। ओके, नामदेव एंड तुकाराम आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वारकरी। 14th century में नामदेव आते हैं एंड तुकाराम 17th century से बिलोंग करते हैं। ओके, निम्बार्क एंड माधव जो ये नाम दिए हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ओके, 13th century में ही आती है। निम्बार्क जो है, निम्बार्क संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, वैष्णविज्म। एंड माधवाचार्य, द्वैत स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो वेदांता फिलोसॉफी में आती है, रामानुचार्य हमने डिस्कस किया पार्ट 1 में, तो द्वैत फिलोसॉफी में आते हैं माधवाचार्य। ओके, 13th century। दे आर 2 अल्टीमेट रियलिटीज़। माधवा की फिलोसॉफी क्या थी? 2 अल्टीमेट रियलिटीज़, गॉड एक है एंड एक कौन सा है? मटेरियल वर्ल्ड। Okay, therefore it stands different from all other. Next question. Which of the following statements are correct? So our correct answer is option 3, A, C, D and E. The general editor of English translation of critical edition of Ramayana is R.P. Goldman.
or Goldman. The project was completed. Sorry, ये नहीं. The Ramayana was composed by Valmiki. Yes, Valmiki Ramayana. Kamban wrote his Ramayana Iravatham in Tamil in 12th century, and the Thai Ramayana is called Ramikin. All the statements are correct except B. ठीक है. Project was completed under supervision of Bhandarkar Oriental Research Institute, Bori, Pune. So ये जो ऊपर वाला जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ रामायण है ये प्रोजेक्ट बोल रहे हैं. ओके. सो ही हैज़ एडिटेड हु R.P. Goldman edited and translated several works related to Ramayana. The project was completed under the supervision, okay, of 1 minute. ओके. सो क्रिटिकल एडिशन जो था वो कहाँ होता है? भंडारा, सॉरी बड़ौदा में होता है क्रिटिकल एडिशन अंडर द सुपरविजन ऑफ R.P. Goldman. ओके. रामायणा वॉज कंपोज्ड बाय वाल्मीकि. इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. कम्बन रोड इरावृतम. थाई रामायण का नाम है रामकीन. एंड यस, वी हैव ऑल्सो स्टडीड द रामायण ट्रांसलेशन ऑफ जैनिज्म में जो रामायण लिखी गई है उसका नाम इट इज़ पोमचरियम. यस, पोमचरियम. ओके. देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण एंड तमिल वाला है इरावृतम, थाई रामायण रामकीन एंड जैन रामायण पोमचरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन 57. Which of the following are correct? The Sakas are mentioned. 1 minute. Our correct option is option 1, A, B, C, D. The Sakas are mentioned in the Prashastis of Gautamiputra Satkarni and Samudragupta. Okay. Skasthana is probably mentioned. 1 minute. Skasthana is probably mentioned in the Mahamayuri, in the Madura Loyan capital inscription and Chandravali stone inscription of Kadamba Mayurasharman. The Jaina work Kalacharya Kathanaka states that Saka king were called Sahi or Sahi. The Harivamsa Purana informs us that Sakas shaved one half of their heads. Okay. Princes bearing Saka names are mentioned in several inscriptions discovered from Bajji. E statement is not correct. Otherwise all are correct. Okay. उनके हाफ हेड जो डी स्टेटमेंट है हरिवंश पुराना के अकॉर्डिंग देयर हाफ हेड वेर शेव्ड, मतलब कि आधे बाल नहीं होते थे, हाफ अनशेवन. ओके. देन हरिवंश पुराना क्या है? ये एक संस्कृत टेक्स्ट है टू सप्लीमेंट महाभारत. जैन वर्क काल चक्र कथनक स्टेट्स द साका किंग वेर कॉल्ड साही. ओके. ये काल जैन टेक्स्ट है दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ वेरियस जैन मॉन्क्स एंड किंग्स. ओके. देन कम्स द स्कस्थाना is probably mentioned in Mahamayuri. So Skasthana है, ये जो वाला स्टेटमेंट है was the name of the region inhabited by the Shakas. Okay. And it is believed to be in Central Asia. So Mahamayuri, it is a Buddhist text that mentions Skasthana as one of the countries where Buddha's teachings were preached. मतलब बुद्धा की टीचिंग वहाँ गई है महामयूरी में. महामयूरी ये बुद्धा की टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो बोलते हैं कि स्कस्थाना में बुद्धा की टीचिंग्स प्रेवलेंट है. ओके. मथुरा लायन कैपिटल इंस्क्रिप्शन कौन सा है? ये इज एन अशोकन एडिक्ट. ओके. दैट रेफर्स टू यवनास, कंबोजास एंड साकास. ये अशोका का है एंड दैट रेफर्स टू यवनास, साकास एंड कंबोजास, फॉरेन ट्राइब्स. ओके. एंड चंद्रावली स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ काडम्बा मयूरशर्मन ऑल्सो मेंशन्स स्कस्थाना, वन ऑफ द रीजन ही कंक्योर्ड. ओके. देन साकास आर मेंशन्ड इन द प्रशस्तिस ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड समुद्रगुप्त. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. गौतमीपुत्र सतकर्णी 2nd सेंचुरी सी में आते हैं एंड समुद्रगुप्त 4th सेंचुरी में आते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. The first newspaper in India, the Bengal Gazette, was also known by the name Calcutta General Adviser. Bengal Gazette's criticism of the government official and attack on the Governor General led to the seizure of its press. The Censorship of the Press Act was introduced in 1809 AD. The Licensing Regulation of 1823 was introduced by John Adams as acting Governor General. The Press Act 1835 repealed the obnoxious Ordinance of 1823. Correct answer है option 4. Okay, option 4 is the right answer. बंगाल वाला जो पहला न्यूज़पेपर था उसे कलकत्ता जनरल एडवाइजर बोला जाता था. बंगाल गैजेट्स क्रिटिसिज्म लेड टू द सीजर, बंद कर दी थी उसकी वजह से प्रेस. देन सी ऑप्शन इज रॉन्ग. सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1809 बोला है बट इट इज़ नॉट करेक्ट. सो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन एडम्स. ओके. डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट एक्चुअली कब आता है? लेट मी राइट इट फॉर यू. 1799 में आता है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट. ओके. बंगाल गैजेट किसका न्यूज़पेपर था बाय द वे? इट वॉज ऑफ की. ओके. देन कम्स द प्रेस एक्ट 1835 रिपील्ड द ऑब्स्टेक्सियस ऑर्डिनेंस ऑफ 1823.
प्रेस एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। उसमें ही रिपील होता है, जो ये एक्ट था वो रिपील हो जाता है, द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। इस एक्ट के बारे में ही था ये वाला जो स्टेटमेंट है, ऑप्शनेक्सियस ऑर्डिनेंस, ये वाला जो रेगुलेशन है इसे रिपील कर दिया गया था इन 1835, ओके। द एक्ट अबॉलिश द रिक्वायरमेंट फॉर लाइसेंस टू पब्लिश न्यूज़पेपर एंड गेव इंडियन न्यूज़पेपर द freedom to criticize and report on government policies on officials, but new restrictions and penalties for seditious and libelous publications ये भी इंट्रोड्यूस किया था इसी एक्ट ने। सेडिशियस यानी कि गवर्नमेंट के विरुद्ध में लिखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। इन द श्वेतवत्रा Upanishad, Shiva figures as the god superior to the Vedic pantheon. Shiva is classed among minor gods both in Apstamba Griha Sutra and Kautilya's Arthashastra. A four-armed figure of god Vishnu Vasudev with chakra in the upper left hand is found on the coins of Panchal king Vishnumitra, and Vinayaka, a synonym of Ganesha, occurs in Atharvashirsa Upanishad. Atharvashirsa is associated with Ganesh tree. Okay, in the Anguttara Nikaya, reference is made of Ajivika who shifted their center of activities to Pandra state, Pandra country, Pundra या Pandra, okay. So ये वाला statement wrong है, okay. It is not mentioned in Anguttara Nikaya, therefore D is wrong. Otherwise all other statements are correct. सबसे पहला statement भी right है। इस उपनिषद में शिवा को सुप्रीम गॉड बोलकर बताया गया है, and it is the earliest mention of Shiva as supreme deity of Hinduism. Then जो अपस्तंभ गृह सूत्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें शिवा को माइनर गॉड बताया गया। 4-armed फिगर ऑफ गॉड विष्णु पांचाल के किंग विष्णुमित्रा के कॉइन्स पर प्रेजेंट है, ओके। एंड देन लास्ट इज विनायका सिनोनिम ऑफ गणेशा, अथर्वशीर्ष उपनिषद विच इज अ माइनर उपनिषद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। Forest Act of 1865 nearly empowered the state to assert control over forest resources that it immediately required, while still acknowledging need to respect the existing rights of forest users. The Forest Act of 1878 established the basic categories of reserved and protected forest. Under the Forest Act of 1878, reserve forests were made an exclusive state monopoly. Okay, so ये statements right है, but last two statements are wrong. The Forest Act of 1878 allowed people slash and burn shifting agriculture in reserve forest. Is it possible? No. The Forest Act of 1878 allowed grazing in reserve forest. Reserve forest में वो कैसे allow करेंगे? So these two statements are wrong. Okay. Sorry. So the first statement, Forest Act of 1865 merely empowered the state to assert control over forest resources. So जो ये एक्ट है पहला वाला 1865 का was enacted to grant the state greater control over the forest. बट स्टिल लोकल के राइट्स भी रिकॉग्नाइज किए गए थे, ठीक है। बेसिकली एक ऑफिसर जिसे जो इंस्पेक्टर था उसे अपॉइंट किया था, एंड विच हैड द अथॉरिटी टू मैनेज फॉरेस्ट एंड इम्पोज फाइन। फिर उसके बाद में 1878 का एक्ट आता है, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट उसके बाद में आ जाता है स्टेट मोनोपोली में, ओके, स्टेट के अंडर आ जाता है, बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड इन रिजर्व एंड विलेज, प्रोटेक्टेड। उसके बाद में द एक्ट एस्टैब्लिश्ड बेसिक कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट। 3 कैटेगरी आते हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज, ओके, जो अभी भी यूज़ किया जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन थे जिसमें स्टेट हैड एक्सक्लूसिव कंट्रोल, ओके। रिजर्व फॉरेस्ट में स्टेट मोनोपोली, ऑप्शन सी। देन विलेज फॉरेस्ट वे मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। सो आवर सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट जो डी स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बोला कि स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं उससे रिजर्व में परमिशन थी। इट वॉज नॉट अलाउड इन द रिजर्व फॉरेस्ट, okay. It was prohibited for the use of fire. Fire का यूज़ भी प्रोहिबिट किया गया था फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट में। एंड देन कम्स द डी स्टेटमेंट, allowed the grazing. No, there was no allowed, nothing, no permission for grazing also. कहाँ ग्रेजिंग अलाउड थी? विलेज फॉरेस्ट में, ठीक है। हमारे पास में 3 टाइप्स के फॉरेस्ट है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज। तो यहाँ पर राइट्स थे विलेज में। Grazing in protected and reserve forest were strictly prohibited, and the forest department had the authority to impose fines अगर violate करते हैं तो। Next question. Question number 61. Which of these are correct regarding Quit India Movement 1942? Our correct answer is option 3, A, B, C, and D. In Kontai, the Swaraj Panchayat was started in November 1942.
Tamralipta Jatiya Sarkar had women corps known as Bhagini Sena. The parallel government established at Tamluk started the mouthpiece Biplapi. In Talcher, during the Quiet India movement, Chasi Mulya Raj was established. Okay? In the और ये statement क्या है? The Chasi Mulya Raj in Tamluk was a parallel government of feudal landlords. So our correct statement is 3. ठीक है, जो ई स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. इट वॉज प्रेजेंट इन तलचार ओनली. जो चासी मुलिया राज है वो सिर्फ तलचार में था. अ पीजेंट गवर्नमेंट. ओके, ओडिशा. तलचार कहाँ पर है? ओडिशा में प्रेजेंट है, तो वो वहीं पर था. एंड देन द पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड एट तमलुक स्टार्टेड द माउथपीस बिप्लबी. तो बिप्लबी क्या था? एक न्यूज़पेपर था जो किसका था? तमलुक में जो पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी उनका था. एंड तम्रलिप्ता जातीय सरकार पैरेलल गवर्नमेंट इन तमलुक. ओके, तमलुक की जो पैरेलल गवर्नमेंट था उसका नाम क्या है? तम्रलिप्त जातीय सरकार, जिसमें वुमेन कॉर्प्स थे एंड उनका माउथपीस, उनका न्यूज़पेपर कौन सा था? बिप्लबी. और उनके कॉर्प्स थे वुमेन कॉर्प भगिनी सेना. ओके, कौन था? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पर स्वराज पंचायत एस्टैब्लिश हुई थी इन 1942. सो वन स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. क्या होता है स्वराज पंचायत? मीन्स टू एस्टैब्लिश्ड पैरेलल गवर्नमेंट. तो बेसिकली ये पूरा किस पर है? पैरेलल गवर्नमेंट पर है. कौन था? तम्रलिप्ता यानी तमलुक एंड देन तलचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अभी यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो एंशिएंट साइड से बिलोंग करता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 A, C and E. ओके, सो पहला स्टेटमेंट है द केव टेम्पल सीतन वसल इन पदुकोटाई कंटेन सम फाइन पेंटिंग्स. 1 minute. The cave temple Sitan Vasal in Padukottai contains some fine paintings of the time of the Pallava king Mahendravarman. Okay. Then Buddha figures in general can be classified under 3 main types. स्थानक यानी कि स्टैंडिंग, आसन यानी सीटेड एंड शयन यानी कि रिकमेंड, सोए हुए. देन ई है इन गंधार स्टाइल बुद्धा इज यूजुअली शोन विथ हिज राइट हैंड रेज्ड इन अभय मुद्रा. ओके, अभय मुद्रा. सो आवर करेक्ट आंसर है A, C and E. केव टेम्पल कहाँ पर है? सीतन वसल, पदुकोटाई, तमिलनाडु. फाइन पेंटिंग ऑफ द टाइम ऑफ किंग पल्लवा किंग महेंद्रवर्मन 7th century AD. जैन रॉक कट टेम्पल्स भी वहाँ पर है. रॉक कट केव टेम्पल्स वहाँ के काफ़ी फेमस है, जैनिज्म से रिलेटेड. ओके, एंड सो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. डिपिक्ट द लाइफ सीन्स ऑफ वेरियस जैन तीर्थंकर्स. कॉपर इमेज ऑफ बुद्धा वॉज इरेक्टेड एट बोध गया. इट इज़ नॉट करेक्ट. Diamond throne at Bodh Gaya, Bihar was erected by King Kumar Gupta. Okay, the throne was dedicated to Lord Buddha and was placed under the Bodhi tree. जो कॉपर इमेज ऑफ बुद्धा बोला है एट बोध गया इन बिहार एट द क्लोज ऑफ 6th century. तो ये 5th century में डायमंड थ्रोन बनाया गया था, नॉट अ कॉपर इमेज. ओके, देन कम्स द सी स्टेटमेंट. बुद्धा फिगर्स जो है स्थानक, आसन एंड शयन, ये तीनों भी करेक्ट है. तीनों पोजेस, तो तीनों भी फिगर्स है, सही है. देन कम्स इन सम स्कल्पचर्स फ्रॉम गांधार, मथुरा एंड सारनाथ. द हेयर ऑन बुद्धा's हेड इज शोन एज कर्ल टर्निंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो जो बुद्धा के हेयर्स है वो कर्ल्ड है और वो राइट टू लेफ्ट है, ऐसा बोला गया है. सो बेसिकली जो स्कूल से ये यहाँ पर बुद्धा के हेड जो हेयर है वो स्ट्रेट होते हैं एंड नॉट कर्ल्ड. ओके, इट इज़ बिलीव दैट बुद्धा शेव्ड हिज हेड completely and kept it short. Therefore, they are straight. In Gandhar style of Buddhist art, during the 1st century CE, Buddha is usually depicted with his right hand raised in Abhay Mudra. Okay, Abhay Mudra क्या बताता है? Reassurance and protection. So, here is the correct statement, option 3. Question number 63. Which of these are correct? ये इसमें से कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट्स? Option 4 is the right answer. Option 4. Peshwa Bajirao II died at Bithur. Treaty of Sagoli was signed between English and the Raja of Nepal. Mahadaji Scindia concluded a treaty of friendship with Sikh chiefs in May 1785. Okay, so यहाँ पर जो हमारा पेशवा बाजीराव है was the last पेशवा of Maratha Empire who was defeated in the Third Anglo-Maratha War. And उनके डेथ के बाद में उन्होंने एक्साइल किया था, सॉरी उनके डिफीट के बाद में वो चले जाते, भागकर चले जाते हैं. एंड 1851 में उनकी डेथ होती है बिथुर में, 1851. ओके, एंड 1803 में ट्रीटी ऑफ सूरजी अंजनगांव वॉज कंक्लूडेड बिटवीन होलकर्स एंड सिंधियास. नो, किसके बीच में होता है ये? मराठास एंड सिंधिया, और सॉरी मराठा एंड ब्रिटिश, नॉट होलकर.
Maratha and British. 1 minute, we will write it properly. Maratha and British. Okay, Surji Anjangaon, signed between the British and Maratha Empire after the Second Anglo-Maratha War. Okay, ट्रीटी ऑफ सगोली राजा ऑफ नेपाल एंड इंग्लिश के बीच में होती है, जिससे कब बनती है ये ट्रीटी? 1861 में. ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द टू नेशंस एंड रिजल्टेड इन नेपाल सीडिंग सम ऑफ इट्स टेरिटरीज टू ब्रिटिश. नेपाल को अपने टेरिटरीज छोड़नी पड़ी थी. अहिल्याबाई होलकर डाइड इन 1795, not 93. She was known for her administrative abilities. And महादजी सिंधिया concluded a treaty of friendship with Sikh chiefs in May 1785. महादजी सिंधिया कौन थे? मराठा रूलर, and he played a very significant role in the politics of northern India. ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब साइन होती है? 1785. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 64. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. जिन्ना acted as दादाभाई secretary at कलकत्ता कांग्रेस in 1906. कलकत्ता कांग्रेस ऑफ 1906 में दादाभाई नौरोजी उनके सेक्रेटरी थे. कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, प्राइवेट सेक्रेटरी. ओके, एंड हु वॉज दादाभाई नौरोजी? फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है. देन कम्स इलेक्शंस वे हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन नवंबर 1923 फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, कब बनते हैं? 1923 में बनते हैं. जिन्ना फोकस्ड ऑन रिवाइविंग द मुस्लिम लीग एट इट्स लाहौर सेशन इन 1923. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, क्यों? तो मुस्लिम लीग हैड लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट. देयरफॉर जिन्ना ने अपॉर्चुनिटी देखी टू रिवाइव इट एंड ही प्लेड अ की रोल इन द एनुअल सेशन ऑफ लाहौर. ओके, देन कम्स द आफ्टर 1923 जिन्ना वांटेड टू कंटिन्यू कोऑपरेशन विद कांग्रेस ऑन द सेम टर्म्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट. उन्हें कंटिन्यू करना था क्या कोऑपरेशन? नो, he didn't wanted to continue it. After the Lahore session, Jinnah began to see Congress as Hindu dominated. ये लाहौर सेशन के बाद में ही चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होती. सो मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. पहले तो वो साथ में थे. इनफैक्ट उन्होंने जो लखनऊ पैक्ट है उसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल भी प्ले किया है. सो ही स्टार्टेड डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जो लखनऊ पैक्ट में नहीं था. इसी के बाद में द हिंदू महासभा मेंबर्स लाइक मदन मोहन मालवीय, BS मुंजे एंड लाजपत राय रिजेक्टेड एनी रिकन्सिलिएशन विद द मुस्लिम लीग. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज ये लोग अपोज में थे ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट. ऑल्सो रिकन्सिलिएशन के भी अपोज में थे. हिंदू महासभा राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 65. विच ऑफ दिस आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. अगेन 4. महात्मा गांधी edited Indian opinion during his South African days. Correct. Judith Brown wrote Gandhi's Rise to Power, Indian Politics, 1915 to 22. Judith Brown gave the subcontractor theory regarding mobilizing support by Gandhi in regional areas. Mahatma Gandhi started All India Anti-Untouchability League. Okay, and D statement है अनुसया साराभाई was the president of Ahmedabad Mill Owners Association. No, उनके भाई होते हैं, वो नहीं. Okay, she was involved with the labours strike. ठीक है, जो लेबर स्ट्राइक है उसमें उन्होंने रोल प्ले किया था. शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन. ये स्टेटमेंट गलत है. ओनली डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी के सारे स्टेटमेंट सही है. ठीक है. गांधी एडिटेड इंडियन ओपिनियन, अ वीकली न्यूज़पेपर ड्यूरिंग हिज डेज इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1903 टू 1915. जूडिथ ब्राउन की बुक का नाम क्या है? गांधीज राइज टू पावर इंडियन पॉलिटिक्स. नोट डाउन द बुक नेम ऑफ जूडिथ ब्राउन. एंड ही गेव द सब कॉन्ट्रैक्टर थियरी रिगार्डिंग मोबिलाइजिंग सपोर्ट बाय गांधी इन रीजनल एरियाज. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. उन्होंने ये थियरी दी थी दैट सजेस्टेड हाउ गांधी मोबिलाइज्ड सपोर्ट इन रीजनल एरियाज बाय क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग हिज मैसेज एंड ऑर्गेनाइजिंग लोकल इवेंट्स. मतलब कि लोगों से ही उन्होंने मैसेज फैलाया और फिर उसी के बाद में उनको एक साथ में लाया. ठीक है. जो मास मूवमेंट गांधी जी ने बिल्ड किया था अक्रॉस इंडिया, कैसे किया था ये थ्योरी वो बताती है. सब कॉन्ट्रैक्टर थे. देन महात्मा गांधी स्टार्टेड ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. कब करते हैं स्टार्ट? 1932. ओके. सो सोशल इक्वालिटी प्रमोट करना एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ दलित. नेक्स्ट क्वेश्चन 66 टर्म्स. ओके, मैच करना है अभी. ये
क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ऑप्शन 2। अभी मैथ करना है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। सबसे पहले वचस्पति किसकी बुक है? सॉरी, वचस्पति किसके ऑथर है? भामती, वचस्पति मिश्रा। ऑप्शन 3 ए का है ऑप्शन 3। इंडियन फिलोसोफर थे वचस्पति मिश्रा एंड फॉलोवर ऑफ अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। ओके, इन्होंने ये कमेंट्री लिखी थी, इज नोन फॉर इस कमेंट्री ऑन शंकरास भामतल, सॉरी ये एल है, भामतल। ओके, भामतल एंड इज मोस्ट फेमस कमेंट्री ऑन शंकरास वर्क। देन पद्मपदा, इनकी बुक का नाम है पफिका पदिका, पफिका पदिका और पफिचा पदिका। सो ये है ऑप्शन 4। ये भी अद्वैत वेदांत स्कूल से बिलोंग करते थे, फिलोसोफर आदि शंकरा के डिसाइपल। ओके, एंड पद्मपदा इज बेस्ट नोन फॉर हिज कमेंट्री ऑन शंकरास मेन वर्क द ब्रह्म सूत्रास कॉल्ड पफिचा पदिका। बेसिकली ये कमेंट्रीज है, ये बुक्स है एंड ये है कमेंटेटर्स, ये है कमेंटेटर्स। ठीक है, श्री हर्षा ने लिखा है खंदन खंदक कदया, खंदन खदना कंदया। ओके, इंडियन फिलोसोफर जो कि अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से बिलोंग करते थे एंड उनकी राइटिंग में बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म को भी इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने। ठीक है, इट इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ राइवल फिलोसॉफिकल स्कूल्स इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मीमांसा, तीनों के बारे में बोला है, ऑप्शन 1। देन कम शंकरा, इनके बुक का नाम क्या है? उपदेश शास्त्री, ऑप्शन 1 मिनट, वी हैव उपदेश शास्त्री एंड ओके शंकरा आदि शंकरा जो कि काफ़ी फेमस है अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के लिए, एंड उनकी बुक का नाम क्या है? उपदेश शास्त्री, विच इज़ अ ट्रिटाइज ऑन द नेचर ऑफ सेल्फ एंड द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ ब्राह्मण और ब्रह्मा। ठीक है, उसमें उन्होंने डिस्कस किया है आइडिया ऑफ ज्ञान और नॉलेज एज द मीन्स ऑफ लिबरेशन। आदि शंकराचार्य की फिलोसॉफी क्या थी? नॉलेज एज द मीन्स ऑफ लिबरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। नाउ देयर इज ऑल्सो बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर ही बेस्ड है, ये बुक्स है एंड ये उनके ऑथर्स है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। पतिना पल्लाई किसकी बुक है? ये नकीरार, सॉरी रुद्रन कनार, तमिल बुक है ये। 10 आइडियल्स जो है संगम लिटरेचर के, उसमें से एक है ये पतिना पल्लाई। ठीक है, तमिल पोएटिक वर्क बिलीव टू हैव बीन कंपोज्ड इन 2nd century CE। The title Patina Pallai means 10 ideal or 10 pastoral poems. Okay, and the work consists of 10 poems that describe the landscape, people and culture of Tamil region. Then comes the next question, next नेदुनल वदाई, ये किसकी बुक है? नकीरार की बुक है ये, नेदुवन वदाई, 3rd century। The poem is one of the 8 anthologies of Sangam literature. Okay, नेदुवन वदाई and Nakirar are the important figures in Tamil literature. Then comes Kavi Rajamarga, Nirapatunga, option 2। निरपतुंगा की है, निरपतुंगा वॉज द मिनिस्टर इन द राष्ट्रकूट कोर्ट। किसके कोर्ट में थे ये? अमोघवर्ष के कोर्ट में थे। ठीक है, कवि राजमार्ग कन्नड़ा लिटरेचर का लैंडमार्क बुक है बिकॉज इट इज़ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग बुक ऑन पोएटिक एंड ग्रामर ऑफ द कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक है, एंड इनकी और एक बुक है कविराज भीम चरिता, ये एक पोयम है ऑफ निरपतुंगा। देन बोधा आराधना, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, बोधा आराधना, ये किसकी बुक है? ऑप्शन 1 शिवा कोटाचार्य। ठीक है, वीरशैव लिंगायत मूवमेंट से कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। बोधा आराधना इज अ यूनिक एंड इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म्ड बाय वीरशैव लिंगायत कम्युनिटी। ओके, it is a form of worship of the Bodha, the great Basavana, who is considered the founding saint of Virashaiva. Okay, and Shiva Kottacharya कौन थे? 16th century Lingayat saint and philosopher, and he was well-known disciple of Akka Mahadevi. Next question 68. Okay, places है and वहाँ से मिले हुए चीज़ों के बारे में पूछा गया है. So our correct answer is option 2. सबसे पहले तो ए सरस्वती। ओके, सरस्वती है, सरस्वती। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। वहाँ से आर्टिस्ट एंड पोएट्स, सरस्वती इज द गॉडेस इन हिंदुइज्म। ओके, ये सब गॉडेस के बारे में, सॉरी मैंने गलत इंटरप्रेट किया, गॉड एंड
उनका किस चीज़ से एसोसिएशन है वो पूछा गया है. सो सरस्वती आर्टिस्ट एंड पोएट. सो सरस्वती हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं नॉलेज, म्यूजिक, आर्ट एंड पोएट्री के लिए. ओके. एंड उनका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वीणा. देन श्री सिनीवली एंटरटेनर. ऑप्शन 4 सिनीवली ऋग्वेदा में डिस्क्राइब की गई है. गॉडेस विद ब्रॉड हिप्स, फेयर आर्म्स एंड फिंगर्स. शी इज ऑफन इन्वोक्ड टुगेदर विद अदर गॉडेसेस सच एज सरस्वती. ओके. एंड इंद्राणी. सिनीवली कौन है? इज एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी ऑल्सो, चाइल्ड बर्थ. नेक्स्ट अश्विनी सर्जन, चैरिटर, सेलर. ऑप्शन 1 अश्विनी आर ट्विन गॉड्स ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन इन हिंदूलॉजी. अश्विनी, एक्चुअली अश्विनी का काफ़ी सिग्निफिकेंस है मेडिसिन को लेकर, ठीक है, हीलिंग. सो दे आर एसोसिएटेड विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड बिलीव टू बी हैव द पावर टू हील डिसीजेस. ओके. अश्विनी. ओके. महाभारत में जो सहदेव एंड उनके छोटे भाई नकुल थे, तो उन दोनों को भी अश्विनी ने ही, वो अश्विनी के वरदान से मिलते हैं कुंती को, एंड देयरफॉर उनके पास में भी हीलिंग की पावर होती है, ऐसी बोला जाता है. विश्वरूपा पॉटर फैब्रिकेटर. ऑप्शन 2 विश्वरूपा इज अ कैरेक्टर इन हिंदू माइथोलॉजी नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल पावर्स और एक्सेप्शनल स्किल्स. ठीक है, ऐसा बोला जाता है. ही इज हैविंग 1000 हैंड्स ईच विद द एबिलिटी टू क्रिएट इंट्रिकेट एंड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. ईयर्स है एंड इवेंट्स इन. ओके. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. डेथ ऑफ आदिल शाह 1580. अली शाह ऑफ आदिल शाह डायनेस्टी बीजापुर. ओके. तब उनकी डेथ होती है 1580 में डेथ होती है. सक्सीडेड बाय हिज फादर. 1 मिनट. ओके. हाँ, इब्राहिम आदिल शाह 2. अली आदिल शाह के बाद में आते हैं इब्राहिम आदिल शाह. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेथ ऑफ मुर्तज़ा निज़ाम शाह 1588. ऑप्शन 2 1588 में मुर्तज़ा निज़ाम शाह की डेथ होती है. विच रूल्ड द अहमदनगर सल्तनत. मुर्तज़ा निज़ाम शाह, निज़ाम शाही डायनेस्टी. बुरहान निज़ाम शाह आते हैं उसके बाद में. देन 4 मिशंस वर सेंट टू डेक्कन बाय अकबर 1591. सो अकबर ने टोटल कितने मिशन सेंड किया? 4 मिलिट्री एक्सपीडिशंस टू डेक्कन विच वॉज देन रूल्ड बाय सेवरल इंडिपेंडेंट सल्तनत्स. फर्स्ट मिशन अब्दुल रहीम खान ए खनन भेजते. देन बीजापुर के साथ नेगोशिएशन. सेकेंड राजा मानसिंह टू कंक्योर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड रूल द निज़ाम शाही डायनेस्टी. देन थर्ड है असफ खान द ब्रदर ऑफ अकबर्स वाइफ टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द सिटी ऑफ खानदेश. ओके. एंड फोर्थ खान ए जमान जो टू सप्रेस रिबेलियन इन द रीजन ऑफ बेरार. देन मैरिज ऑफ चांद बीबी. ऑप्शन 1 1564. चांद बीबी वॉज वाइफ ऑफ अली आदिल शाह. ठीक है, अली आदिल शाह के वाइफ होते हैं चांद बीवी. सो उनकी मैरिज होती है 1564 में. डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह 1. क्यों फेमस है वो? शी वॉज द डॉटर ऑफ द फाउंडर ऑफ निज़ाम शाही डायनेस्टी. हुसैन निज़ाम शाह की बेटी होती है चांद बीवी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ठीक है. टर्म्स है एंड देयर मीनिंग्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. चेंज हो गया था क्वेश्चन. टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स. 12 वर्दी. ऑप्शन 3 रिक्रूट ऑन हेड ऑफ पे. रिक्रूट ऑन एड ऑफ पे. परमानेंट नहीं होते, एड ऑफ होते हैं, टेम्पररी. सयूर गर्ल टैक्स फ्री लैंड. अल्तमगा परमानेंट रेवेन्यू असाइनमेंट टू एन असाइनीज फैमिली इन हिज नेटिव प्लेस. अल्तमगा एक टाइप की जागीर है जो किसके टाइम पर प्रेवलेंट थी? जहांगीर. बेतुलमल इज ऑप्शन 2 पब्लिक ट्रेजरी. ओके, दिस आर द टर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 71. बुक्स एंड देयर ऑथर्स. यहाँ पर ये ऑथर है और ये है बुक्स. अभी ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, वेरी इजी. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. कल्हाना राज तरंगिनी. शेख सिकंदर मीरत सिकंदरी. अबुल फजल एन अकबरी. काफ़ी खान मुंतकब उल लुबाब. ये सारे हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं. अभी इतने कॉमन है ना ये नेम्स, कोई अगर नींद में से भी उठा के पूछे ना पता रहना चाहिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कमीशंस एंड उनके ईयर. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1
ऑप्शन 1 इज करेक्ट. हंटर एजुकेशन कमीशन कब आती है? 1882-83. हंटर एजुकेशन कमीशन लॉर्ड रिपन के टाइम पर आती है. सो क्यों आती है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड टू लुक एट द कंप्लेंट्स ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आती है? 1917-19. ठीक है. सजेस्टेड बाइफर्केशन ऑफ हायर एजुकेशन एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट है हार्टॉग कमेटी, ऑप्शन 4, 1929. Investigated various aspects of education and presented report in 1929. Okay. Sargent Plan of Education 1944. Central Advisory Board of Education ने बनाई थी ये रिपोर्ट ऑन द एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, नोन एज सर्जेंट रिपोर्ट इन 1944. ओके. एंड इसी में जो फ्री प्राइमरी एजुकेशन था, बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड 11 to 14 सीनियर बेसिक एज सजेस्टेड इन द वर्धा स्कीम. ओके. वर्धा स्कीम जो हमने पढ़ी है इसके पहले भी. सीनियर बेसिक और द मिडल स्कूल टू बी फाइनल स्टेज इन द स्कूल करियर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स. ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. न्यूज़पेपर है एंड देयर ऑथर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन 4. स्वदेशमित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर, इंडियन मिरर NN सेन, एडवोकेट GP वर्मा एंड महारत GG आगरकर. ओके. स्वदेशमित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर, उनका न्यूज़पेपर था विच इज़ फ्रेंड ऑफ द कंट्री, स्वदेशमित्रम 1882. ओके. प्रमोटिंग इंडियन नेशनलिज्म एंड आइडियाज ऑफ INC, इंडियन मिरर NN सेन 1862. ओके. नोटेड जर्नलिस्ट, और ये कब आती है? इंडियन मिरर 1862 में आती है. नोन फॉर प्रोग्रेसिव एंड रिफॉर्मिस्ट स्टांस, सोशल इश्यूज़ को बताते थे इस न्यूज़पेपर में. देन कम्स द एडवोकेट GP वर्मा 20th सेंचुरी. ओके. वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन, एडवोकेट में क्या आता था? वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन. महारत GG आगरकर, फाउंडेड इन 1881. ये भी 19th सेंचुरी में है बट लेट 19th सेंचुरी में. ओके. GG आगरकर का महारत. सो न्यूज़पेपर एडवोकेटेड फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड वुमेन्स राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अगेन देयर इज क्वेश्चन ऑन न्यूज़. दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट. ये डायरेक्टर है और उनकी मूवीज़. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दादा साहेब फाल्के, मोहिनी भस्मासुर, विजय भट्ट, राम राज्य, मास्टर विनायक, ब्रांडी की बोतल एंड बी शांताराम, दुनिया न माने. ओके. दादा साहेब फाल्के, उनकी पहली मूवी का नाम क्या है? फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913. मोहिनी भस्मासुर भी इंडियन माइथोलॉजी बेस्ड बुक है, सॉरी फिल्म है. ये किसने डायरेक्ट की है? दादा साहेब फाल्के. विजय भट्ट, राम राज्य, मास्टर विनायक, ब्रांडी की बोतल एंड बी शांताराम, दुनिया न माने. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. societies sabha and their founders. So Mitra Mela, we will directly see the answer, option 2, Punjab Hindu Sabha, UN Mukherjee and Lal Chand. स्वदेश बांधव समिति, अश्विन कुमार दत्त. मित्र मेला, VD सावरकर. अनुशीलन समिति 1. ओके. P मित्र. क्वेश्चन नंबर 76. अरेंज द फॉलोइंग शुंगा डायनेस्टी रूलर्स क्रोनोलॉजिकली. इन्हें अरेंज करना है. सो पुष्यमित्रा, वासुमित्रा, पुलिंदका, अग्निमित्रा, देवभूमि. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. अभी ऑलमोस्ट सब जगह पुष्यमित्रा को फर्स्ट बताया है. तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है अगर पता नहीं है तो. सबसे पहले आते हैं पुष्यमित्रा, देन अग्निमित्रा, देन कम्स वासुमित्रा, देन कम्स पुलिंदका एंड देवभूमि सबसे लास्ट में है. लास्ट रूलर भी है ये. ठीक है. हम ईयर्स भी लिख देते हैं इनके. पुष्यमित्रा शुंग 185 BC. वासुमित्र अग्निमित्र कब आते हैं? 149 इनके डेथ के बाद में.
BC. Vasumitra comes in 141. Pulindaka 131 and Devabhumi 121. ऑलमोस्ट एक सेंचुरी में सब खत्म हो गए थे. इन्हें कौन मारते हैं? जो लास्ट रूलर है इसे कौन मारता है? कनवा जो रूलर्स है वो मारते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. सबसे पहले हेमचंद्र राय चौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया 1923. उसके बाद में है KP जायसवाल, हिंदू पॉलिटी 1 मिनट, हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन था, 1924 में. ओके, 1924 में पब्लिश होती है हिंदू पॉलिटी ऑफ KP जायसवाल. उसके बाद में आते हैं हमारे PTS अयंगर, हिस्ट्री ऑफ तमिल्स टू 600 AD. PT अयंगर 1938. RC मजुमदार की बुक है एंशिएंट इंडिया 1972. A.S. अल्टेकर, द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन 1938. ओके 1 मिनट, हमने थोड़ा गलत कर दिया, ईयर्स फिर से लिखते हैं. सॉरी. सबसे पहले हेमचंद्र राय चौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया 1923. देन कम्स KP जायसवाल, हिंदू पॉलिटी 1924. उसके बाद में है PTS अयंगर 1929. ओके, उसके बाद में है A.S. अल्टेकर 1938 एंड लास्ट में आता है RC मजुमदार, एंशिएंट इंडिया 1972. सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, एक्चुअली मेरे बुक में भी ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना, इसके लिए कंफ्यूज हो गया था. सो इट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी, लिख लीजिए. एंड यस, ऑल्सो चेक आउट द ऑथर्स एंड देयर बुक्स, बिकॉज सी यहाँ पर जो ऑथर्स एंड जो बुक्स उनके दिए हुए हैं इसके ऊपर नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. क्रोनोलॉजी में ना आए बट उनके बुक के ऊपर भी तो आ सकता है. बुक एंड ऑथर को मैच करके बताओ. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम. अरेंज द फॉलोइंग सियोलिनिस किंग्स ऑफ विजय डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1. सबसे पहले आते हैं हमारे विजया, जो विजय डायनेस्टी के हैं. तुक्का मार लो, पर सी सब में पहले नहीं मार सकते. ठीक है, सबसे पहले विजया 543 BC. ओके, ये क्या हो गया? उसके बाद में आते हैं पांडु वासुदेवा 505. देन कम्स अभया 474 BC. देन उदिया 454. उसके बाद में इलारा 437. ओके, थोड़ा ख़राब हो गया है ना. अभी मैंने थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश की. इफ़ एनीवन नोज अ गुड पेन टू राइट ऑन द टैब, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. मेरा पेन ख़राब हो चुका है, मैंने मंगाया था, थोड़ा ख़राब ही निकला वो. सो इफ़ एनीवन नोज अ गुड क्वालिटी पेन, लेट मी नो इन द कमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये श्री विजया डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये रूलर्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79. अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ईस्ट इंडिया कंपनी के महलवारी रेगुलेशन. ओके, हम डायरेक्टली क्रोनोलॉजी में अरेंज कर लेते हैं. फर्स्ट है ऑप्शन 1 है. सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कोल माइन ओपन एट रानीगंज 1774. ओके, रानीगंज में फर्स्ट कोल माइन, बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया. फिर उसके बाद में आता है महलवारी रेगुलेशन इशूड 1833. ओके, 1833 महलवारी 1833 में स्टार्ट होता है. एंड देन कम्स द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1843. फिर GPI रेलवे कंपनी फॉर्म्ड इन लंदन 1845. और सेकेंड ओपियम वॉर बिगिंस इन 1856 बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
In the context of 13th 14th century, arrange the following in chronological order. Correct answer is option 2. Option 2. So सबसे पहले मार्को पोलो विजिट्स मलाबार कोस्ट इन 1292 में मलाबार कोस्ट आते हैं मार्को पोलो, वेनेशियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर एंड राइटर. ओके, इन द कोर्ट ऑफ किंग रामराजा ऑफ होयसाला एम्पायर. फिर फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1299. ओके 1299. देन अलाउद्दीन खिलजीज प्राइस कंट्रोल मेजर्स 1296 से लेकर 1316 तक चलते हैं, 10-20 साल. उसके बाद में आते हैं हमारे मोहम्मद तुगलक टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट 1325. और टोकन करेंसी 1330 के अराउंड हमने देखा था ना, 1329 समथिंग हमने देखा हुआ है इसके पहले. इबन बटूटा इन इंडिया 14th सेंचुरी, लेट 14th सेंचुरी में आते हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर. ओके 14th सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक. चलिए आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर 1299 लिखा है मैंने, इफ इट्स नॉट विजिबल 1299. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द रूलर्स एज पर देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो वी हैव टू अरेंज द रूलर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. सबसे पहले आते हैं हमारे शमशुद्दीन इल्तमिश. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन है? शमशुद्दीन इल्तमिश. 1211 से लेकर 36 में आते हैं शमशुद्दीन इल्तमिश. उसके बाद में आते हैं घियासुद्दीन बलबन. इल्तमिश के बाद में बलबन. ओके 1266. इमीडिएट सक्सेसर इल्तमिश के कौन है? रज़िया सुल्तान. बट उसके बाद में उनके भाई भी आते हैं एंड ये ही मारा मारी कर कर बलबन एस्टैब्लिश करते. मुइज़ुद्दीन कैकुबाद. ओके मुइज़ुद्दीन कैकुबाद 1287 से लेकर 1290. उसके बाद में आते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96. एंड देन कम्स अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316. ओके राइट द क्रोनोलॉजी, करेक्ट क्रोनोलॉजी. ठीक है चलिए. ओके अगेन क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. सबसे पहले आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ हाइट एज वन ऑफ द प्यूजिन जजेस 1774. अच्छा सुप्रीम कोर्ट 1774 में आता है आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके देन कम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नर जनरल इन द काउंसिल वेयर नॉट रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट. 1781 के जो एक्ट है उसमें आता है 1781 के एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781. बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टैब्लिश्ड 1784. Governor General was given the powers of both Governor General and Commander in Chief 1786. And then B है लास्ट में. The power given to Governor General to override his council was extended to all future Governor Generals and Governors 1833. Okay. During the reign of William IV. Charter Act of 1833 से ये पावर मिलते हैं गवर्नर जनरल को. So note down the dates. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. सबसे पहले आते हैं हमारे डेथ ऑफ नाना फडणवीस 1800 में होती है इनकी डेथ 1800. देन वेलेस्ली एनेक्सेस कार्नेटिक. वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1801 में. ओके ही एनेक्स द कार्नेटिक रीजन. ब्रिटिश the treaty of Basin between British India Company and Peshwa Bajirao to 1802. Battle of Pune. After the Battle of Pune. Okay 1 minute. यहाँ पर हम अच्छे से लिख देंगे 2. Then comes the Vellore Mutiny 1806. Sipais stationed at Vellore rebelled against the British. Okay. और D है Malcolm's mission to Persia and Elphinstone's mission to Kabul 1808. Next question 84. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. सो सबसे पहले आता है महात्मा गांधी. ये पूरा महात्मा गांधी जी से एसोसिएटेड है. महात्मा गांधी रीस्टार्टेड हरिजन वीकली आफ्टर अ लैप्स ऑफ 18 months. ओके हरिजन वीकली कब स्टार्ट हुई थी? 1933 नवंबर.
Then comes Mahatma Gandhi while addressing convocation of Banaras Hindu University paid tribute to Pandit Malviya 1934. पंडित मदन मोहन मालवीय को ट्रिब्यूट पे किया था उन्होंने. ओके. एंड देन कम्स महात्मा गांधी एड्रेस्ड ऑल इंडिया काउ प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस ऑफ नागपुर अगस्त 1936. अगस्त 1936. फिर आते हैं गांधी मेट मार्शल एंड मैडम शियांग केशक एट कलकत्ता. कौन थे शियांग केशक? प्रेसिडेंट ऑफ चाइना. एंड हिज वाइफ visited India to seek support for China's war effort against Japan 1942. Gandhi met Cripps and described his proposal as a post-dated check. ये कब आएगा? आफ्टर द क्रिप्स मिशन. ओके. 1942 मार्च. ठीक है, ये फेब में हो रहा है, ये भी लिख लेते हैं हम. इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा बिकॉज ये फेब में है. फेब 1942 एंड इट इज़ इन मार्च 1942. ओके. चलिए आगे बढ़ेंगे. नोट डाउन द डेट्स. क्वेश्चन नंबर 85. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 एट सुल्तानपुर मई में स्टार्ट होता है, मई. फिर उसके बाद में रिवोल्ट एट सोगर जून. सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में आता है अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड उन्हें मार दिया गया था. सोगर टू प्लेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जून, यह मध्य प्रदेश में आता है. ठीक है. देन रेबल्स डिफीटेड जनरल विंधम आउटसाइड कानपुर. ओके. जून, ये भी 27 जून. 27 जून. ठीक है. फिर तांतिया टोपे एस्केप्स. तांतिया टोपे 16 जुलाई को एस्केप होते हैं 1857. ओके. आफ्टर द फॉल ऑफ झांसी. झांसी फॉल्स टू ब्रिटिश 1858 जून 1858. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट डाउन द डेट्स. ये पूरा किससे एसोसिएटेड है? में जो रिवोल्ट था 1857 का, उससे एसोसिएटेड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. असर्शन एंड रीजनिंग. सो चोला किंग राजेंद्र expanded his kingdom through his powerful maritime expeditions in Sumatra and Malay, but later lost interest in further campaigns. Later Cholas got involved in wars with Chalukyas and had to withdraw their troops back to the mainland. Correct answer is option A. Both A and R are correct. R is not the correct. R is the correct explanation of A. ठीक है. राजेंद्र ने, जो राजेंद्र थे चोला किंग, इन्होंने एक्सपेडिशंस किए थे टू सुमत्रा एंड मलय, बट लेटर जो उनके बाद में जो सक्सेसर्स थे उनका इंटरेस्ट भी कम हो गया था. एंड वो इंटरेस्ट क्यों कम हुआ था? बिकॉज ऑफ द इंटरनल वॉर्स. नेक्स्ट. Akbar gave Mughal Empire its immensely systematic and centralized structure. He was able to establish claim to universal land ownership in India. Correct answer is option 3. A is true but R is false. Okay. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? उन्होंने इंट्रोड्यूस की है बहुत सारे रिफॉर्म्स, उसकी वजह से सिस्टमैटिक एंड सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बन जाता है. करेक्ट है. बट अकबर डिड नॉट एस्टैब्लिश क्लेम टू यूनिवर्सल लैंड ओनरशिप. ओके. उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं बट उन्होंने क्लेम नहीं किया है लैंड ओनरशिप पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Muhammad bin Tughlaq showed extraordinary consideration for foreigners and admitted them to the highest ranks in his administration. Under Muhammad bin Tughlaq, the character and composition of ruling class was not changed. Correct answer है option 3. Okay, A is true but R is not. तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स काफ़ी वेल नोन है एंड उसमें उन्होंने फॉरेनर्स को हाई ऑफिसर, हाई पोस्ट पर भी एस्टैब्लिश किया था. ओके. लाइक इब्न बटूटा. एंड यहाँ पर बोला गया है उन्होंने चेंज नहीं किया था कैरेक्टर एंड कंपोजिशन, उन्होंने किया था चेंज. ओके. हिज पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेनर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वेयर सीन कंट्रोवर्शियल एंड वही उनका डाउनफॉल भी लाते हैं, ऐसा माना गया है उस टाइम पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In August 1942, Mahatma Gandhi was arrested under the Defense of India rules following the Quit India resolution and lodged in the Yerwada jail. In January 1932, Mahatma Gandhi was arrested under the Bombay Regulation of 1827 and interned in Aga Khan Palace, Pune. अच्छा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो ये दोनों भी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. ठीक है. बिकॉज जो महात्मा गांधी का अरेस्ट है वो तो बहुत बार होते थे अरेस्ट, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 1942 अगस्त में, तो वो यरवड़ा जेल में नहीं थे, तब वो आगा खान पैलेस में थे. ये ऊपर नीचे किया है उन्होंने. 1942 में आगा खान पैलेस में रखा गया था एंड जो ये जो है कि जनवरी 1932 में ही वॉज केप्ट इन द यरवड़ा जेल और वहीं पर पूना पैक्ट भी साइन होता है बाद में बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
statement list. The Pandya rulers Muthukuthumi Peruvaludi is called Param Bhagavata. The Chera king Perum Seral Adan, who joined the Pandya ruler against Karikal, was wounded and starved himself to death in the battlefield by the way of expiation. करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट. ठीक है, परम भागवता वाला जो क्लेम है वो रॉन्ग है. ओके, मुकुदुमी पेरुवलुदी was a significant ruler of Pandya dynasty and there are no historical evidence to suggest that he was called Param Bhagavata. फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है पेरुम सेरल अदन, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, चेरा किंग थे ये और उन्होंने अपने आप को स्टार्व किया, कुछ खाया पिया नहीं, एंड ही वॉज डेड इन द बैटलफील्ड, fast unto death and act as a penance. Now, okay, passage based question है. Ramanuja, a Brahmana who taught in the great temple of Srirangam is said to have lived. Basically, अब मैं passage नहीं पढ़ रही हूँ, no, बहुत टाइम चले जाएगा. So, what system of philosophy did Ramanuja propounded? रामानुजा की फिलोसॉफी क्या थी? विशिष्ट अद्वैत. हमने पढ़ा है इसके बारे में स्टार्टिंग में ही. विशिष्ट अद्वैत है रामानुजा की फिलोसॉफी. ओके, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the name of Ramanuja's commentary on ब्रह्मशास्त्र? क्या था उनकी बुक का नाम? श्री भाष्य. ऑप्शन 2, श्री भाष्य वॉज नेम. ओके, ये नॉलेज बेस्ड पैसेज है, डोंट वरी. श्री भाष्य, ब्रह्मसूत्र ऑल्सो नोन एज द वेदांत सूत्रास आर सेट ऑफ एफोरिज्म्स एंड समराइजेस द फिलोसॉफिकल एंड मेटाफिजिकल टीचिंग्स ऑफ उपनिषद एंड भागवत गीता. ठीक है, किसने लिखा था इन्हें? भद्रयाना. और उसके ऊपर कमेंट्री किसने की है? श्री भाष्य में रामानुजा. इन विच सिटी डिड रामानुजा टीच हिज फिलोसॉफी? कहाँ है ये? श्रीरंगम. ये तो ये पैसेज में दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड रामानुजा प्रपोजेस एज द मोस्ट एफिशिएंट पाथ टू साल्वेशन? प्राप्ति. ऑप्शन 2. ये वाला नॉलेज बेस्ड पैसेज है. ओके, प्राप्ति is the Sanskrit term that means surrender or self surrender. Okay, नो पैसेज में नहीं दिया गया है कहीं पर भी. ये थी उनकी सेंट्रल फिलोसॉफी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ टीचर ऑफ रामानुजार्य? नाथमुनि. नाथमुनि वॉज टीचर. ओके, नाथमुनि वॉज टीचर ऑफ रामानुजार्य. वैष्णविज्म के प्रपोनेंट है नाथमुनि भी, एंड इनकी काफ़ी फेमस बुक है दिव्य प्रबंधम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये वाले हैं पैसेज बेस्ड. नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रपोज्ड INA पार्टिसिपेशन इन द जापानीज कैंपेन अगेंस्ट इम्फाल टू जापानीज फील्ड मार्शल तेराचू. काउंट तेराचू. सी यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, तेराउची, काउंट तेराउची, सॉरी, काउंट तेराउची. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हम यहाँ पर साइड में आ जाते हैं. Field Marshal of Japan showed his unwillingness towards INA participation in the proposed Japanese campaign against Imphal. Which one of this is not correct? अच्छा, तो ये स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है. They will be easily identified as being part of the British group. So ये भी पैसेज में ही दिया है स्टेटमेंट, आप उसमें से अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, उसमें है ये इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु मेड दिस स्टेटमेंट दैट एनी लिबरेशन ऑफ इंडिया सिक्योर्ड थ्रू जापानीज सैक्रिफाइसेस इज वर्स देन स्लेवरी? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस. ओके, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ नेताजी अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द वॉर? व्हाट वाज द फीलिंग? इट वॉज नेताजी इंसिस्टेड दैट इंडियंस मस्ट मेक द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एंड सेक्रीफाइस देमसेल्व्स. ओके, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. उस पर से हम ये वाला कंक्लूजन निकाल सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन. हु वॉज द चीफ ऑफ जापानीज जनरल स्टाफ इन बर्मा हु मेड सुभाष चंद्र बोस इन जनवरी 1944? कौन थे ये चीफ? ऑप्शन 2, जनरल काटाकुरा. जनरल काटाकुरा. ओके, सो वी हैव डन द वीडियो हियर. ये मिलिट्री जर्नल थे, काटाकुरा, जापानीज मिलिट्री जर्नल. ओके, so now the video is done. Hope you like the video. Do like it, share and subscribe if you are new to the channel. Thank you for watching. Yes, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट्स में बताइए what more you want or what more should I edit. Thank you for watching.